ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். அன்னையின் தரிசனத்தை நமது இதயத்தில் காண்போம். அன்னையிடம் பக்தியோடும் பணிவோடும் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகைக்காக எங்களின் இதயத்தை சுத்தம் செய்கிறோம். தங்களின் பொற்பாதங்களை எங்களின் இதயத்தினுள் வைத்திடுங்கள். தங்களின் பொற்பாதங்கள் எங்களின் இதயத்தால் வணங்கப்படட்டும். எங்களை தவறான நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கச் செய்யுங்கள். மாயைகளிலிருந்து எங்களை அழைத்துச் செல்லுங்கள். எப்பொழுதும் எங்களை உண்மையின் பக்கம் மட்டும் வைத்திருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் மேலோட்டமான தன்மையை எடுத்துவிடுங்கள். தங்களின் பொற்பாதங்கள் எங்களின் இதயத்தினுள் வைத்து நாங்கள் பூஜிக்கும்போது ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த உணர்வானது எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி சென்று எங்களுக்கு தியானத்தின் ஆழத்தை உணர்த்தி விடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்ய தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தங்களின் தத்துவம்
எங்களின் இடா நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருந்து அனைத்தையும் விழிப்புணர்வு அடைய செய்து நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை இடா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் ஆகாய மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், தங்களின் தத்துவம் எங்களின் பிங்களா நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருந்து சக்கரங்களை விழிப்புணர்வு அடைய செய்து அதன் மூலம் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான் என்ற உண்மை நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்குள் உணர்த்தி விடுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் உண்மையும் தர்மமும் மட்டும் நிலைத்திருக்கவும் அந்த செயல்களுக்குரிய வழிகாட்டுதலை தாங்களே எங்களுள் இருந்து செயல்படுத்தவும் வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களின் சுழுமுனை நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருந்து சக்கரங்களை விழிப்புணர்வு அடைய செய்வதன் மூலமாக நாங்கள் எப்பொழுதும் இறைவனோடு இணைந்த நிலையில் இருக்கவும் அதன் மூலமாக நாங்கள் உணர்கின்ற அந்த பேரானந்த உணர்வானது எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக எங்களின் மூலாதாரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தாங்கள் எங்களின் மூலாதாரத்தில் வசிக்கிறீர்கள். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருக்கச் செய்யுங்கள். தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் செய்ய இயலும். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் தத்துவத்தையும் எங்குள் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க தாங்கள்தான் எங்களை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற தாங்கள் எங்களின் தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் எங்களின் ஆத்மாவை தயவு செய்து உணர வைத்திடுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், விவேகம் போன்றவற்றை எங்களுக்கு உணர்த்தி அதன் மூலம் நாங்கள் பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் பணிவும் அன்பும் நிலைநிறுத்தி இருப்பதுடன் அதன் மூலம் நாங்கள் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் இருக்கவும் எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் செய்ய இயலும். எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधातात्
त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
கவனம். மெதுவாக நம்மளுடைய பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, எங்களின் ஆதி குருவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு தூய அறிவை தந்து சுயம் குருவின் நிலைப்பாட்டை உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களை அனைத்து விதமான மாயைகளிலிருந்து விடுபட வைப்பவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான பாசாங்குத்தனமான பெருமைகளை அகற்றுபவரும் தாங்களாவீர். தாயி, ஆழம் காண இயலாத தங்கள் எங்களுக்கான தியானத்தின் ஆழத்தை உணர்த்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயி, எங்களுக்குள் சமநிலையை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் தெய்வீகத்தின் விவேகத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்தி எங்களுக்கான சுயங்குருவின் தத்துவத்தையும் அவற்றின் கண்ணியத்தையும் உணர்த்துபவர் தாங்களாவீர். தாய், நாங்கள் தியானத்தின் ஆழத்தை உணர்வதற்கும் அதன் மூலம் அமைதியான நிலைப்பாட்டை நிலைநிறுத்தி எங்களுள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நடத்தைகளிலும் ஒரு சுயம் குருவின் செயல்பாடு நிலைத்திருக்க தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவரான தாங்கள் எங்களின் குரு தத்துவத்தை தயவு செய்து மேம்படுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனத்தை பவசாகரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். குக்கரை நிறுத்துங்க. மார்னிங் மெடிடேஷன் போய் இருக்குது. குக்கர் சவுண்ட் வச்சுருங்க. கொஞ்ச நேரம் கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ மகா காளியாவே 3 குணங்களின் சாராம்சமாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களின் தெய்வீக தாயாவீர். தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைகிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்த தங்களின் ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி நிற்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்கு தங்களின் அன்பான அருளாசியை வழங்கி நாங்கள் எப்பொழுதும்
எண்ணங்களற்று சந்தேகங்களற்று நிர்விகல்பா நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கவனத்தை கொண்டு சென்று சகஸ்ரார சக்கரத்தின் மந்திரங்களை நாம் இப்பொழுது கேட்டு நம்முள் கூறி அந்த நிலையை நாம் உணர்வோம். பத்தொன்பது பெயர்களாகும். கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். श्री महागणेश ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महाभैरव ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महत्मनस ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महत्मनः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महदहंकार ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महदहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री हिरण्यगर्भ ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सत्य ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सत्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महच्चित्त ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महच्चित्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आदिशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विराट ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कल्की ॐ
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सदाशिव ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अर्धमात्रा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अर्धमात्रा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री बिंदु ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बिंदु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री वलय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वलय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आदि ब्रह्म तत्व ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदि ब्रह्म तत्व साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सर्वस्व ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्वस्व साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सहस्रार स्वामिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री मोक्षदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मोक्षदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महायोगदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महायोगदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सहस्रार के साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो
நமக. நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவு 1983 சகஸ்ரார பூஜையில் ஆற்றிய சொற்பொழிவு. இது மராத்தியில் இருக்கும், தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகும். நாம் இப்பொழுது கவனமாக அதை கேட்டு உள்வாங்கிக் கொள்வோம். हे सगळ्यात मोठं मिळालेलं आहे. त्याचा आज 14वा वाढदिवस आहे. त्यासाठी आपण इतकी सुंदर जागा शोधून काढली, त्याबद्दल मी सर्व मुंबईच्या सहयोगी व्यवस्थापकांच्या साठी विशेष रूपात अशी विनंती करते की उत्तरोत्तर अशा सुंदर जागा शोधून काढाव्यात आणि सर्वांना धन्य करा. आज मी हिंदीतच बोलणार आहे, तेव्हा सर्वांनी मला समजून घ्यावं. आपण हिंदी भाषा शिकलीच पाहिजे, ती राष्ट्रभाषा आहे आणि आपल्या राष्ट्राची जी भाषा आहे ती आपण शिकली पाहिजे, त्याचा मान सुद्धा ठेवला पाहिजे. म्हणून मी हिंदी भाषेत बोलणार आहे. कालच्या भाषेत तुम्हाला समजलं ना मी काय म्हटलं ते, तर एखादा शब्द नाही लागला तर त्याचा अर्थ तुम्ही शोधून काढावा. आज मी सांगितलंय की 14वा वाढदिवस आहे, म्हणजे जर पहिला वाढदिवस ठरला तर हा आजचा. म्हणून मी हिंदी भाषेत बोलणार आहे. कालच्या भाषेत तुम्हाला हा आजचा 14वा वाढदिवस. मेरे तरफ से भी अनेक धन्यवाद. बहुत सुंदर जगह उन्होंने, बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है. ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त जिस चीज के बारे में बोलने वाली थी, उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके संस्कार की बात की. 14 वर्ष को कहना चाहिए, या जिसे 13 वर्ष हो गए और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है. ये महान कार्य संसार में हुआ था जबकि संस्कार खोला गया. इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर संस्कार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महत्व क्या है. लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है. इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया. आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं. अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र तो सर्वतः आप मिल जाते हैं. 7 क्या, उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते. वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र. फिर एक हमसा चक्र है. इस प्रकार 3 चक्र और आ, तो 7 और 3 10. उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं. और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था. अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4. सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है, उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना. अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण. इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो गए. और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है, अगर उसको विभाजित की जाए तो. 7 चक्र अगर ईरा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है. मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है. और कुंडलिनी जो है
वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको अगर समझा कि दो रस्सी और दोनों रस्सियां इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी दो अवगुंठन लेती। जब दो अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से, पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आया, अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर लिया, फिर इस प्रकार दो अवगुंठन उसके होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप संस्कार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते। यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो ये फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहीं श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप घुस सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक हो, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटलिस्ट, और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उठती है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज छूट जाए। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो, इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है, वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना।
श्रीफल ये बगैर पूजा संपन्न हो। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं है। उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन की, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरह इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पूरी, वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिक। तो ये साक्षात श्रीफल जो है, यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है, तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का, इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है, और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग तना क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहते, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में बस, उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में
और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लगे, अग्रसर हो, सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना पड़ा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतया परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है, लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया है, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, कंकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता तो ठीक करता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी चाहिए। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उच्च स्तर पर। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं?
अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते हैं। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो सकता। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते हैं और कहते माँ हमारी तो बस गलती हो। अबे होगी कैसी जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो फिर डोर की फंसाने की भी जरूरत है। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए, यही था। उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को, तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। कल कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखती। तो मैं इसे क्या करूँगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आए मुझे। नजर हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आती, इनकी भी नजर ऊपर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ही ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा। पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है, और जड़ को संभालने के लिए वो क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसलिए ये घुसा चला है, और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा, और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है, और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा। அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களுக்கு சகஸ்ராராவின் அதை பற்றிய அந்த தூய அறிவை எங்களுக்கு உணர்த்தியமைக்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் அறியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எப்பொழுதும் நாங்கள் தங்களின் கவனத்திலேயே இருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களும் தங்களை மகிழ்விப்பதாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
தாயே, இன்றைய நாளில் நாங்கள் சகஜ யோகத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருக்கவும் ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்தருளுங்களம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.